Hello everyone, welcome back to my Python programming series. My name is Raj Chauhan. Today we are continuing the unit 1 in the one shot. Let's continue the unit 1. Today we are start the basic of Python. Let's discuss about the Python. What is Python? Python is a high-level language, an interpreter language, and readable code, and easy and readable code. Let's open the VS Code and discuss about what is Python. Python, it's look like similar to the English. We write here hello world and then execute this code will be executed. That is so easy. Python. Python बहुत easy है. अगर आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखोगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका पहला कोड ये बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश की तरह. पाइथन के फीचर्स हैं सिंपल सिंटैक्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड ओपन सोर्स एंड आल्सो रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. Python supports OOPS concept also and supports some libraries like NumPy and Pandas. Application of Python we use in we use Python in AI/ML machine learning and web development and DevOps something. I will learn Python. Python is easy to learn and also in future Python have lot of scope in the programming and Python is high level language and easy also. That's why we learn the Python. If पाइथन को आप VS कोड में यूज़ कर सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो क्रोम से जाके. ये मतलब क्रोम से जाके आप वहाँ पे सर्च करोगे ना VS कोड और वहाँ से उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना तो वहाँ से हो जाएगा. और पाइथन की एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेना क्रोम से और चेक कर लेना वहाँ पे विंडो में नीचे जाके है ना उसको चेक कर लेना कि वो अवेलेबल हुआ है कि नहीं. Let's discuss about comments. Comments in Python have two types, single line comments and multiple line comments. In Python, we use single hashtag. If we write in the start hashtag, तो ये लाइन जो है ये कमेंट हो चुकी है पाइथन में तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी. ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि मैंने इसे कमेंट कर दिया है. कोई भी लाइन हो अगर आपको कमेंट करना है तो उसके आगे हैशटैग यूज कर लेना. और एक सिंपल कमांड है कंट्रोल और बैक स्केप. इफ वी यूज Python control back escape, it's comment your line. Then second type is multiple line comment. We write here multiple lines. Hello world, hello world. Then after saying hello, अगर आपके पास मतलब 10-12 लाइन हुई तो आप उसको ट्रिपल क्यूटेज से कमेंट कर सकते. लाइक 1 2 3 1 2. ये आपकी लाइन कमेंट हो चुकी है तो ट्रिपल क्यूटे का यूज होता है मल्टीपल लाइंस कमेंट करने के लिए. लेट्स डिस्कस अबाउट सम अदर्स. व्हाट इज कीवर्ड्स? Keywords in the Python are resolved. We have 35 keywords in the Python and also cannot be used in the variable name. हम कीवर्ड को वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते. और identifiers are names given to the variables and function class and other class. Identifiers वो होते हैं जो तुम्हारी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं. लाइक इफ वी राइट इन द VS कोड नेम नेम इक्वल टू राज तो ये राज है. ये आइडेंटिफायर है क्योंकि ये राज के आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहा है कि उसका नाम राज है. और ऑल्सो नेम इज वेरिएबल्स. इन द अपकमिंग slide we discuss about what is variable.
और आइडेंटिफायर्स कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होते और कभी भी उससे डिजिट से स्टार्ट नहीं होते। इफ वी यूज अंडरस्कोर, इट्स ओके, you use in the starting underscore, but don't use digits and uh, letters. Like if you use capital letter and small letter, all these identifiers are different. And Python is also a case sensitive. We cannot use keyword as identifiers. So we have common identifiers in the Python like def, class, if, else, for, while, import, return, true, false, none. Let's quick test. Try import keywords. Keyword is keyword while print true. If we use like अगर आप VS कोड में ये लिखोगे कीवर्ड इज डॉट इज कीवर्ड फाइल, सो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। सपोज हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं वाइल, जो कि वाइल हमारा एक कीवर्ड है। आप इसको रन कर सकते हो, खुद से ट्राई करना एक बार इसको VS कोड में। एंड आफ्टर लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज वेरिएबल। वी यूज let's discuss about what is variable. Variables are assigned directly, like no direct declaration and name equal to Raj and age equal to 8। जो ये एज है ये मेरा एक वेरिएबल है, ये मेरा एक वेरिएबल है। नेम जो है ये मेरा एक वेरिएबल है। और हम मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करते हैं? इफ वी हैव सिमिलर वैल्यू लाइक एज, लाइक एक्स, तो ये हमारा मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्लेन। अगर हमको अगर हमें एक ही वैल्यू दी जाए और हमको प्रिंट करवाना हो एक्स वाई और जेड में, तो हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। रन दिस कोड 10 10 10। तो ये हमारा मल्टीपल असाइनमेंट, ये इजी होता है थोड़ा हमारे लिए। और हमारे पास नेमिंग कन्वर्जन टाइप, ये अगर हमें राज एज करनी हो तो ये हमारा स्नेक केस होता है, लाइक राज रोल टाइप वी यूज इन पाइथन। ये थोड़ा अच्छा होता है कि हम वेरिएबल को अच्छे से डिक्लेयर कर सकें, मतलब जो हमारा व्यूअर होगा, मतलब जो कोड देखेगा, उसको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या लिया है एग्जैक्ट। सो ये हमारे लिए थोड़ा इजी होता है कि किसी को कोड समझाने के लिए, तो ये हमको यूज़ करना चाहिए। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंडेंटेशन। Indentation is used to define code blocks in Python. It is essential for control flow in statements like if, or, while. Let's take some example in the VS Code. If we write here age 90, after if age is greater than, print adult false। मैंने इसको वेरिएबल में हमने 19 वैल्यू असाइन कर दी है, और ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल टू, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। मतलब ये कंडीशन चेक कर रहा है कि एज हमारे 18 से ऊपर है कि नहीं। लेट्स रन दिस कोड। इट्स adult because age is 19। if you don't use here indentation, so ये give, so is an error, that is we use here, it is an indentation, that is the importance of indentation in Python. If after the if we use indentation,
that is the importance. Let's discuss about what is control flow. If control flow, through this example, I will explain what is control flow. पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि हमने पहले समझा है कि इंटरप्रेटेड क्या होता है। इंटरप्रेटेड मीन्स लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। लाइक पाइथन में पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन सो ऑन। तो कंट्रोल फ्लो वो होता है कि पहले इफ की कंडीशन चेक होगी, पर इफ की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही। लाइक हमने यहाँ पे 12 दे दिया कंडीशन, let's correct this code। अगर हमारी एज 25 से लेस देन है तो ये चाइल्ड है, मतलब कि पहले हमारा इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, देन आफ्टर वो उसके बाद एल्स बजाएगा। ये होता है कंट्रोल फ्लो। पहले इफ, देन आफ्टर इलिफ, देन आफ्टर एल्स, देन आफ्टर एंड द कोड। That is the control flow. Control flow structure indicate that order in which the code statements are executed based on the condition or iteration. They enable the program make condition and repeat action, like if statement, then after if statement, then after else statements. Let's use that is the example name number equal to 10, and after if number is greater than 0 print positive number, then after if number equal to 0 then print 0, then after else, then after negative number। क्योंकि हमने पहले ही नंबर असाइन कर दिया है कि 10, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा हमारा पॉजिटिव नंबर, कि 10 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये हमारी इफ कंडीशन चेक करेगा। अगर ये हमारा 10 नहीं होता, लाइक ये हमारा 0 होता, तो ये हमारा 0 इक्वल टू 0, तो ये हमें प्रिंट करता है 0। अगर ये भी हमारा गलत होता, अगर हम असाइन करते हैं नंबर इक्वल टू -1, तो ये हमारा नेगेटिव नंबर होता। ये होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। Let's discuss about what is data types in the Python. We have int data types, float data types, string data types, boolean data types. Let's we discuss about what is an int data types. Let's open the VS code. We write here a equal to 10। ये हमारे इंटीजर डाटा टाइप्स है कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे 10.0, तो ये हमारा फ्लोट है, फ्लोट वैल्यू है, ये हमारा फ्लोट डाटा टाइप्स है। और पर यहाँ पे राज है, ये हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप्स है। और यहाँ पे ट्रू है और फॉल्स है, लाइक कैपिटल। ये हमारा बूलियन डाटा टाइप्स है। बूलियन डाटा टाइप्स होते हैं ट्रू और फॉल्स। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंटीजर डाटा टाइप। होल नंबर्स, अनलिमिटेड addition in the Python, floating point numbers like pi, 15.16 like string, hello, boolean is true and false, and complex like combination of imaginary values, like that we discuss about typecasting. Okay, right here, let's first discuss about how to take the code to the computer, to the user। लाइक a इक्वल टू int, अगर हमारा इंटीजर डाटा टाइप है तो हमें कैसे वैल्यू लेनी है खुद से। लाइक assign the value a, assign ऑपरेटर, देन आफ्टर int, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं, देन इनपुट, एंड आफ्टर एंटर द वैल्यू। तो ये हमें इंटीजर वैल्यू देगा। और अगर हमको b लेना है, तो हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पे फ्लोट यूज करेंगे।
एंटर दी आफ्टर दी, और हमको स्ट्रिंग देना है, तो स्ट्रिंग के लिए हम सिंपल यूज करेंगे इनपुट एंटर दी string that's print also print a b c to this one that's given to the integer value that take 12 and float value 12.0 okay after a, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे ए में इंटीजर वैल्यू ली है और हमने बी में फ्लोट वैल्यू ली है और सी में हमने इंटीजर वैल्यू ली है। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप टाइप भी लिख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन सी वैल्यू डाली है टाइप, इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यू क्या है। वैल्यू चेक करने के लिए हम टाइप लेटर मतलब कीवर्ड यूज करते हैं दैट कॉपी 12 वैल्यू 10 0 10, तो ये हमारी 12 जो है इंटीजर है, 10 12.0 हमारी फ्लोट वैल्यू है एंड एफ हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर हम टाइप यूज ना करें तो हमें सिंपल देगा, टाइप यूज करना है तो ये हमको बता देगा कि हमारी वैल्यू क्या है, इंटीजर है फ्लोट है या स्ट्रिंग है। ये थोड़ा इजी होता है हमारे लिए। और टाइप कास्टिंग, अगर हमको टाइप कास्टिंग है तो हम इक्वल टू फ्लोट टी इक्वल टू ए, तो ये हमारा टाइप कास्ट हो जाएगा इंट से फ्लोट में। लेट्स रन दिस कोड, लेट्स रन दिस कोड and comment this in this mode. Enter the value 12 and 12.0 because हमारी जो इंटीजर वैल्यू थी वो हमने फ्लोट में कर दी है, तो हमारा डाटा टाइप चेंज हो गया है। ऐसे हमारा डाटा टाइप चेंज होता है। अगर हमको ये फ्लोट से इंटीजर करना है तो यहाँ पे हम इंट कर दें, तो यहाँ पे हम फ्लोट कर दें, ऐसे ही होता है हमारा डाटा टाइप चेंज। डिस्कस अबाउट व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट, ये हमने पहले ही समझ लिया कि इनपुट कैसे लेते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं और आउटपुट कैसे होता है। कि operators, we have the arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator, membership operators. Let's discuss about arithmetic operator. Arithmetic operators are plus, minus, multiply, flow, division, modulo, expro, and in the relation operator like equal to, comparison operator, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to. Logical we have and or not, and the assignment operator भी है इक्वल टू प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू। ये थोड़ा असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है कि थोड़ा इजी करने के लिए, पर हमें यहाँ पे लाइक लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। पर यहाँ पे इक्वल टू 10 है तो हमको प्लस करनी है तो हम प्लस इक्वल टू 1 कर सकते हैं। इंट ये असाइनमेंट ऑपरेटर का ये यूज होता है कि को इजी करना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 नहीं लिखता और ये यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू ये प्लस 1, तब कोड को इजी करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ए दो दो बार लिखा है
अरे यहाँ पे भी हम सिंपल लिख दें -a -1। तो यहाँ पे ये भी हमारा करेक्ट है। ये थोड़ा इजी होता है हमारे लिए। नाइन टू रिमेम्बर दिस assignment of it would be used here into let's run this code, it's 20 सिंपल होता है इसको यूज करना। Let's we discuss about arithmetic operator. We have the value a equal to 10। अगर हम दोनों हमको प्लस करना है इन दोनों वैल्यू को तो हम कैसे यूज करेंगे? we use the arithmetic operator print a plus b। तो ये हमारी दोनों वैल्यू प्लस कर देगा। यही होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। माइनस ए बी टेन आफ्टर प्रिंट ए बी प्रिंट ए मॉड्यूलो एक फ्लोर है बी बी और हमेशा जो ये होता है मॉड्यूलो ये हमेशा हमें रिमाइंडर वैल्यू देता है और जो ये फ्लोर होता है ये हमको क्वेश्चन वैल्यू देता है और हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। कभी भी ये हमको फ्लोट वैल्यू नहीं देगा, ये हमको इंटीजर वैल्यू देगा। यही होते हैं हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। लेट्स वी डिस्कस अबाउट what is relational operator। Like we have a equal to 10, check the relation। Let's also b equal to 10 if a equal to b, then print equal, else print not equal because a equal to 10 and b equal to 10। यही होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। इफ वी यूज हेयर इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये हमारा लाइक if a is not b and this or is not equal because we assign the value a equal to 10 and b equal to 20, so that is the assignment operator। Name relational operators, also we have the logical operator like int and not। if we use here enter a b, तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है। 0 और मेंबरशिप नो और नॉट इन, like in the VS Code if we have a bunch J A in that is true because A in the V, because Raj in the V, that is the membership of beta। If that was the, that is the membership of it Python। Uh, Example of Python operators like plus, addition, minus, subtraction, and into multiplication
That's division, then floor division, then modulo, remainder, then exponential. Integration operator like equal to, not equal to, greater than, less than, or equal to, and greater than equal to, and return true. Both conditions are true, and after returns are true if at least one condition is true. And assignment operator assign the value. Let's discuss about what is an bitwise operator. We use bitwise operators before, and like print equal to, यहाँ पर bitwise operator करा था। ये हमारा bitwise operator है। ये जो हमने एंड यूज करा है ये हमारा bitwise operator। अच्छा, and here we use bitwise operator for XOR in one complement and that's it. This is the example. Next, we discuss about what is an expression. An expression is a combination of values, variables, operators, then execute a values. What is an statement? A statement is an instruction that perform an action. Let's discuss about what is an expression. Expression वो होता है like we write here print a plus b. तो जो हमारा ऑपरेंड्स है मतलब ए और बी हमारा ऑपरेंड्स है, जी प्लस हमारा ऑपरेटर है, मतलब ये ऑपरेंड्स एक ऑपरेटर से परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, मतलब प्लस हो रहे हैं। सो ये एक्सप्रेशन है कि ये प्लस हो रहे हैं। 30 स्टेटमेंट्स वो होती है लाइक वी राइट हियर प्रिंट प्रिंट वैल्यू, मतलब बताना किसी को कि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, वो हमारा स्टेटमेंट्स होती है। हेलो वर्ल्ड, ये हमारा एक स्टेटमेंट, मतलब कि x इक्वल टू 10, मतलब x हमारा 10 मतलब 0 से बड़ा है, तो हम प्रिंट कर रहे हैं पॉजिटिव, मतलब बता रहे हैं उस एक्शन को कि हमने एक्शन में क्या लिखा है, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो हमारा स्टेटमेंट होता है। और लिस्ट क्या है? लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड और म्यूटेबल कलेक्शन होता है डाटा का, मतलब ऑर्डर्ड मैनर में और स्ट्रक्चर मैनर में डाटा स्टोर होता है। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स हम डाटा को मतलब चेंज भी कर सकते हैं अपने डाटा को। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल कलेक्शन होता है, हम डाटा को चेंज भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। हाउ क्रिएट लिस्ट? लिस्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट होती है, लाइक एक्स ओपन द VS कोड, we write here num equal to 11 22 50 50। तो ये हमारा लिस्ट है, मतलब जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सो हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं एक। हाउ वी indexing in the list? Let's discuss. If we print num 1 सो हमारा क्या प्रिंट होगा? सोचो, हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं लिस्ट में, सो हमारा क्या प्रिंट होगा? आई थिंक 22, बिकॉज लिस्ट में हम कभी भी 1 से 11 स्टार्ट नहीं होता, इसमें हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। लेट्स प्रिंट 0 टू लास्ट। ये हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, 11 12 40 15। यही होता है हमारा इंडेक्सिंग, मतलब लिस्ट के अंदर के डाटा को इंडेक्स के थ्रू वैल्यू आउटपुट में शो करना, मतलब कोई सी भी वैल्यू को लेना, लाइक 22 को आउटपुट में प्रिंट करना, 40 को प्रिंट करना,
तो हम इंडेक्सिंग का इसलिए यूज करते हैं अपने डाटा को निकालने के लिए। Why we use slicing? Slicing is also like this. This is a slicing. If we write here टू, सो हमारा ये 40 से स्टार्ट होगा और ये लास्ट तक जाएगा। ये होता है स्लाइसिंग। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि स्लाइसिंग क्या होता है। देखो पहले इसने हमारी स्लाइसिंग में पूरी लिस्ट प्रिंट कर दी थी, और ये इंडेक्सिंग में हम वैल्यू को, जो वैल्यू का इंडेक्स में है उसको खींच लेते हैं। स्लाइसिंग में हम पूरा भी प्रिंट से कर सकते हैं, मतलब जहाँ से हमें ज़रूरत है हम वहीं से ही प्रिंट कर सकते हैं। ये होता है इंडेक्सिंग का रूल। Why we use method? Let's discuss about the list method. If we use append method to append the value in the list. Let's take the example in the VS Code. If we append the multiple value like num dot append, मतलब लिस्ट के अंदर हमें 40 और डालना है, तो हम append यूज कर सकते हैं। प्रिंट मतलब लिस्ट के अंदर हम वैल्यू को डाल सकते हैं। देखो ये हमारा 40 प्रिंट हो गया लास्ट में। सो वी यूज append ऑल्सो। ये लिस्ट के मेथड होते हैं। वी यूज इंडेक्स मतलब इंसल्ट, मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन में हम वैल्यू को डाल सकते हैं इंसल्ट के थ्रू। लाइक हमें वन के मतलब वन पे डालनी है, और मतलब वन पे डालना है टू। देखो ये हमारा जीरो से स्टार्ट होता है और हमें वन पे डालना है इंडेक्स, सो ये हमारा वन पे टू डाल देगा। देखो ये 1 2 3 प्रिंट हो गया। ये होता है इंसर्ट। रिमूव मतलब लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू को रिमूव करना। देखो आपको VS कोड में दिखाता हूँ। अगर हमको रिमूव करना है 40, सो ये हमारी लिस्ट के अंदर से 40 को रिमूव कर देगा और प्रिंट करवा देगा 11 12 15। देखो उसने रिमूव कर दिया है। ये मेथड होते हैं, ये आपको याद करने होंगे। लाइक अपेंड क्या करता है, इंसर्ट क्या करता है, रिमूव क्या करता है, पॉप क्या करता है। पॉप हमारा वो करता है रिमूव एंड रिटर्न्स आइटम एट द गिवन इंडेक्स डिफॉल्ट टू द लास्ट। मतलब ये हमको लाइक डिलीट जैसा ही होता है, मतलब रिमूव जैसा बिल्कुल। और सॉर्ट होता है, सॉर्ट वो होता है जो लिस्ट आइटम इन प्लेस असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। मतलब सॉर्ट वो होता है हम असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। लाइक इफ वी यूज है सॉर्ट मेथड, ये हमको सॉर्ट करके दे देगा, मतलब ये असेंडिंग में कर देगा और ये डिसेंडिंग में कर देगा। मतलब मैक्सिमम तो सॉर्ट असेंडिंग ही करता है। देखो असेंडिंग में इसने अरेंज कर दिया। अगर यहाँ पे मैं 100 लिखूँ, इससे पता चल जाएगा आपको मैं क्या करा। देखो इसने असेंडिंग में सब अरेंज कर दिया। ऐसा होता है सॉर्ट यूज। ये हो गया हमारे लिस्ट के सारे मेथड। आपको याद कर लेना है कि अपेंड हमारे क्या करता है। अपेंड हमें वैल्यू को अपेंड करने के लिए यूज करता है, मतलब वैल्यू को ऐड करने के लिए। इंसल्ट यूज होता है हमको, हमें मतलब इंसल्ट मतलब स्पेसिफिक पोजीशन में इंसल्ट करने के लिए। रिमूव होता है हमें स्पेसिफिक वैल्यू जो हमें रिमूव करनी है। और पॉप वो होता है जो हमें स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करना है। और सॉर्ट होता है जो हमें असेंड मतलब असेंडिंग वैल्यू में अरेंज कर देता है, सॉर्ट कर देता है। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज टपल। वी यूज देखो हमने लिस्ट हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट से यूज कर रहा था। मतलब लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से यूज होती है और टपल्स हमेशा पैरेंथेसिस से स्टार्ट होते हैं। ये आपको याद करने वाली चीज होती है, छोटी छोटी चीज आप याद कर लेना। और ये हमारा like we use also like 1 2 and symbol 14। like ये भी मतलब सिंपल है कि ये
हमेशा पैरेंथेसिस से हम टपल्स को इंडिकेट करते हैं। इंडेक्सिंग ऑल्सो सेम लाइक लिस्ट, मतलब पूरा सिमिलर है, बस आपको ये याद करना है कि ये हमेशा पैरेंथेसिस से होता है। वो टपल्स हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। वो टपल लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है और टपल्स हमारा इम्यूटेबल होता है। लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड होती है और टपल्स ऑल्सो ऑर्डर्ड बट इम्यूटेबल। हम टपल्स में मॉडिफाई नहीं कर सकते वैल्यू, जैसे हम लिस्ट में कर देते थे। इम्यूटेबल मीन्स कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू, कैन नॉट चेंज द वैल्यू। जैसे कि अगर हमें जीरो में 5 डालना है तो ये हमें एरर देगा, मतलब जो हमारी जीरो की वैल्यू 1 है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये हमेशा 1 ही रहेगी। इट इज दैट्स व्हाई इट इज इम्यूटेबल। लेट्स डिस्कस अबाउट द सम फ्यू टपल्स मेथड्स लाइक वी कैन काउंट द वैल्यू 2, मतलब काउंट हमेशा यूज होता है कि 2 वैल्यू कितनी बार आई है पाइथन में। लाइक इन दी लेट्स क्रिएट इन दी VS कोड। अगर हमारे पास नम में parenthesis 1 comma 2 comma 2 comma 3, हमको काउंट करना है कि 2 कितनी बार आया है टपल में। ये थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। देखो, वो अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? हाँ, मतलब मैंने थोड़ा गलत ले लिया था। अच्छा, हमको आगे भी मतलब कुछ लिखना होगा, कुछ स्टोर करवाने के लिए। ये समझ नहीं पा रहा है कि हम करना क्या चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, अभी चल गया है क्योंकि हम असाइन नहीं कर रहे थे वैल्यू को, और ये हमें एरर दे रहा था पर ऐसा लिस्ट में नहीं था। ये और ये भी याद कर लेना कि ये हमें ऐसे। सो हमारा टू कितनी बार काउंट है, मतलब कितनी बार आया है टपल में। सो हमारा टू 2 बार आया है टपल्स में। दैट इज काउंट, टू काउंट द वैल्यू। एंड इंडेक्स ऑल्सो लाइक start, stops, and so on. It is the method of tuples. Let we discuss about what is sets. Set also unordered collection of unique elements. They are mutables. Like sets भी हम change कर सकते हैं. Like we use the curly braces to indicate the sets. We use tuples in square bracket and list square bracket, tuples parentheses, and sets curly braces. Don't forget this. Remember this. We use the creation like curly braces. We store the set value in the curly braces. And let's discuss about the set methods. Set methods also similar like to list. If we add in the set, we use the add method. Here the cursor. We use the add method to in the set we add the value to. We have the add method to add the value in the set. We have discard method to remove the value in the set. We have union value to identify the unique element in the set. मतलब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, मतलब हमें मतलब पूरी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। इंटरसेक्शन मीन्स रिटर्न द सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट कॉमन टू द बोथ सेट। मतलब इंटरसेक्शन वो होता है कि दोनों सेट में कौन कौन सी वैल्यू सिमिलर है। ये सेट के हमें मेथड हैं, ये हमको याद करने हैं कि ऐड डिस्कार्ड क्या करता है, यूनियन क्या करता है, इंटरसेक्शन क्या करता है। ये हमको फॉरगेट नहीं करना है, ये रिमेम्बर रखना। चाहे आप एक नोटबुक ले लो, उसमें नोट करते रहो ये मेथड। ये मेथड हमको
आने वाले टाइम में बहुत इस्तेमाल करने को मिलेंगे, तो डोंट फॉरगेट दिस। वी हैव द डिक्शनरी। डिक्शनरी मीन्स की वैल्यू पेयर्स। सेट में हम कीज डालते हैं, बट डिक्शनरी में हम कीज वैल्यू डालते हैं। मतलब उसके अंदर ही, मतलब सेट में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, डिक्शनरी में भी हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, बट चैट्स में हम कीज डालते हैं और डिक्शनरी में हम कीज वैल्यूज पेयर डालते हैं। मतलब वैल्यू भी हाथों हाथ असाइन करते हैं, और ऑल्सो इट्स इम्यूटेबल। हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लाइक हमने यहाँ पे नेम में एलिस करा है, तो ये एलिस ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। मतलब इट्स ऑल्सो सिमिलर टू द सेट्स, बट we use here the key values pairs. We assign the values like name, here the cursor name equal to Alice and age equal to 30. Don't forget this today. Today is important to assign the values in the dictionaries. Let's discuss about the dictionary methods. We have the multiples dictionary methods like get, keys, values, items, update. अगर हमको कीज मतलब कीज प्रिंट करनी है, तो हमारे पास कीज वैल्यू मेथड है। और हमारे पास अगर हमको डिक्शनरी कीज की वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो हमारे वैल्यूज एक ऑपरेटर्स है, मतलब कीवर्ड है, तो उसको यूज करके हम वैल्यूज ले सकते हैं सारी डिक्शनरी की। आइटम्स, आइटम्स में हम डिक्शनरी के सारे आइटम्स ले सकते हैं, मतलब जितने भी आइटम्स है ना, उसके की वैल्यूज वाले, वो हमको सब असाइन हो जाएंगे, वो टपल्स के फॉर्म में होते हैं आइटम्स हमेशा। अपडेट भी कर सकते हैं हम उसको अपडेट मेथड से। ये कभी भी नहीं भूलना, ये याद कर लेना कि गेट क्या करता है, कीज क्या करता है, वैल्यूज क्या करता है, आइटम्स क्या करता है, अपडेट क्या करता है। Let's we discuss about what is the operator precedence. Operator precedence, we have the first parenthesis, then after exponential, that after multiply, division, then floor, then after addition, subtraction, then after and, then after or. It is the precedence of order. Firstly, don't forget, firstly we use the parenthesis. parenthesis सबसे पहले आता है, सबसे पहले parenthesis वाला ही होगा, ना कि हमारा मल्टीप्लाई होगा। ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, ये भी हमको ध्यान रखना है। मतलब याद कर सकते हो अगर आपको याद करना है तो, पर इसको भूलना मत। रिमेम्बर दिस। वी हैव द स्ट्रिंग बेसिस। String also similar to the list, sets, tuples, also like that. We use the string. It's also similar, like it's too easy. If we write here name equal to Raj, और हमको प्रिंट करवाना है नम का 0, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको R देगा। स्ट्रिंग में बहुत इजी है। अगर हमको स्लाइसिंग करनी है, लाइक 0 टू लास्ट, तो हम ये स्लाइसिंग मेथड यूज कर सकते हैं। देखो राज, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ये इंडेक्सिंग मेथड भी हमने देख लिया, हैशिंग मेथड भी देख लिया। अब इसके थोड़े कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन देख लेते हैं कि स्ट्रिप क्या होता है, अपर क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है। लेट्स वी डिस्कस अबाउट स्ट्रिप अपर मेथड एंड स्ट्रिप मेथड। अपर, अगर हमको उनकी सारी वैल्यू अपर करनी है, मतलब अपर केस में, सो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। सो ये हमको सारा कैपिटल देगा, देगा राज। लोअर भी कर सकते हैं अगर ये हमारा कैपिटल हो तो। देखो आर हमारा स्मॉल हो गया, लोअर हो गया। तो स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमको मेथड याद हो ना, सो ये सब याद हो गया। देखो स्ट्रिक्ट लाइक दैट,
मतलब स्टेप भी सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको भी। मतलब हमको लोअर स्ट्रिंग ये सब हमको याद है ना, तो हमारे कोड इजी है हमारे लिए। तो हमेशा याद करने की मेथड क्या करता है, अपडेट क्या करता है, ऐड क्या करता है, इंसर्ट क्या करता है, ये सारे मेथड याद कर लेना। उसके वाइज लिस्ट में कौन कौन से मेथड आते हैं, सेट्स में कौन कौन से मेथड आते हैं, सी रिमेम्बर दिस, लिस्ट के कौन कौन से मेथड हैं ये सब याद कर लेना। और टपल्स के कौन कौन से मेथड हैं, सेट्स के कौन कौन से मेथड हैं, डिक्शनरी के कौन कौन से मेथड हैं, ये याद कर लेना। और हम एम्प्टी लिस्ट हम सिंपल यूज कर सकते हैं, लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल्स, हम टपल्स पैरेंथेसिस या पैरेंथेसिस से भी एम्प्टी टपल्स कर सकते हैं। सेट्स भी हम सेट पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस से भी कर सकते हैं। ये हमारी एम्प्टी डाटा हो गए। मतलब अगर हमारे पास आ गया कोई क्वेश्चन, ये लिस्ट हम कैसे एम्प्टी असाइन कर सकते हैं, तो हमें ये याद होना चाहिए कि हम इसको एम्प्टी कैसे कर सकते हैं। Let's take some practice programs to sum the value, to swap two numbers, area calculation and user input examples। चलो क्वेश्चन करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं बीएस कोड में। वन बाय वन सारे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। लेट्स ओपन द सेकंड पीरियड। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो हम सिंपल राइट करेंगे प्रिंट टुडे हेलो वर्ल्ड एंड ऑल्सो सेव दिस कोड, कंट्रोल एस एंड देन एग्जीक्यूट दिस कोड। इट्स हेलो वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, प्रिंट योर नेम। अब अपना नाम कैसे प्रिंट करें। सो चलो हम सिंपल यूज करते हैं, प्रिंट माई नेम इज राज, राज चौहान, then control S, then after execute, then my name is Raj Chauhan। हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेक टू नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम। हमें इनपुट लेने हैं, तो हम इनपुट कैसे लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, प्रिंट टू नंबर एंड देयर सम। अब इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट लेते हैं इक्वल टू, अगर हमारे हमें इंटीजर लेना है तो हम आगे लिखेंगे इंट, देन आफ्टर इनपुट, देन आफ्टर एंटर द नंबर वन। अब दूसरा नंबर प्रिंट करेंगे, इंट इनपुट एंटर द नम टू। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि हमको इन दोनों का सम करना है, तो हम सम लेंगे, सम इक्वल टू ए प्लस बी, देन आफ्टर प्रिंट। यहाँ पे हम ट्रिपल क्वोटे के अंदर लिखेंगे, तो ये हमारा आउटपुट में भी शो होगा, सम ऑफ टू नंबर्स। तो सम, अब अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ये बोल रहा है कि एंटर द नंबर वन। हम नंबर वन की वैल्यू प्रिंट करेंगे। पहले हम करेंगे 10, फिर उसके बाद नंबर टू की वैल्यू करेंगे 20 एंड देखेंगे सम ऑफ टू नंबर इज 30। सो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर हमें बोला जाता कि फ्लोट वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं। तो अब देखते हैं सम करवा के फ्लोट का। पहले हम फ्लोट वैल्यू करेंगे 11.2,
11.2, then 10.2, इट्स 25.4। हमने फ्लोट वैल्यू का भी सम करा दिया है। अब पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। टेक टू नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट देयर डिफरेंस। चलो ये भी सिंपल है। चलो फ्लोट का ही करवाते हैं। डिफरेंस मीन्स माइनस। सिंपल वी यूज हेयर सम की जगह यहाँ पर div and after div then remove this, then control s, then execute, then enter the number 1, 12.1, and after 12.1 then is 0.0। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। करते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। टेक टू नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट देयर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट। हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं। अगर हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे हम इंट ले लेंगे सिंपली। अब एग्जीक्यूट करेंगे प्रोडक्ट। अब अपना एंटर करेंगे पहली वैल्यू 10, दूसरी वैल्यू भी 10 करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा 100। अगर इसको हम चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट। देखो अब ये हमें क्या शो करेगा 20, 20, 400। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इट्स 400। हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। नहीं फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। टेक टू नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट देयर डिवीजन। डिवीजन सिंपली वी यूज हेयर div। division means this, then after division so यहाँ पर लिख देंगे हम div, कंट्रोल एस, देन आफ्टर एग्जीक्यूट। हम अपनी वैल्यू फर्स्ट करेंगे 6, देन करेंगे 2। तो हमारा डिवीजन क्या होगा 3.0। हमेशा डिवीजन हमें फ्लोट वैल्यू देता है। और अगर यहाँ पे हम फ्लोर ले मतलब फ्लोट डिवीजन तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। ये हमें फ्लोट वैल्यू में देगा। देखो 6, 3 ये हमें इंटीजर वैल्यू देता है। फ्लोर हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है और डिवीजन हमेशा फ्लोट वैल्यू देता है। देखो 6, 3 ये याद रखना, भूल मत जाना। और एक और चीज बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलो यूज करते हैं लाइक मॉड्यूलो, ये हमेशा हमें रिमाइंडर देता है डोंट फॉरगेट दिस। जैसे 6 and 3 it's 0। Let's take some different to understand what he gave। if 5 and 2 1 ये हमेशा रिमाइंडर देता है मॉड्यूलो। डिवीजन हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा और फ्लोट डिवीजन हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। मतलब फ्लोट वैल्यू और एंड मॉड्यूलो हमेशा रिमाइंडर वैल्यू। डोंट फॉरगेट दिस। अब हम अपना 7th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ टू नंबर। हमने कर लिया है। रिमाइंडर मॉड्यूलो से हम रिमाइंडर ले सकते हैं और क्वेश्चन हम फ्लोर से ले सकते हैं। देखो ये हमेशा क्वेश्चन देगा 6, 2। ये हमेशा क्वेश्चन देगा। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। स्वैप टू नंबर यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। चलो अब स्वैप करते हैं। अगर हमारे पास एक के पास 10 है और बी के पास 20 है सो प्रिंट स्वैप करते हैं बी इक्वल टू ए
then a equal to b, and print b कंट्रोल s। तो हमारे पास b के पास क्या होगा 10, क्योंकि हमने स्वैप कर दिया वैल्यू। स्वैप, अगर हम प्रिंट a करें तो हमारे पास a के पास क्या होगा, a के पास 20 होगा, a के पास 10 होगा, 20 नहीं होगा, क्योंकि हमने b में 10 असाइन करा है। देन आफ्टर a में, क्योंकि b में हमारा पहले ही 10 हो गया था, सो a इक्वल टू b, मतलब हमेशा 10 ही रहेगा। चलो ये भी हो गया। फाइंड द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। चलो स्क्वायर करते हैं। a के पास 10 है, तो प्रिंट स्क्वायर, a का स्क्वायर 100। ये क्वेश्चन भी है हमारा। फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर। चलो एक नंबर का क्यूब लेते हैं। लेट्स टेक 3 एंड आफ्टर क्यूब 3, सो 3 का क्यूब क्या होगा, 27। ये क्वेश्चन हो गया। देन आफ्टर फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 पाई आर एल। नो, इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ। Area of the rectangle is length into breadth. Let A equal to 10, B equal to 20. Print area of the rectangle। इसे सिंपली ले लेते हैं L, इसको सिंपल ले लेते हैं breadth। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टू L इंटू B, तो हमारा ये भी हो गया 200। क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई r square। Let's solve this question. Area of the circle, 2 pi into r into r। So हम पहले लेंगे पाई इक्वल टू 3.14, पहले ये साइन कर लेंगे ये वैल्यू वैल्यू, और रेडियस हम इनपुट लेंगे, मतलब यूजर से लेंगे। एंटर द रेडियस द सर्कल, then after area pi into r, print area equal is, let's execute this code। Its radius is 2, then after it's 12.5.6। ये हो गया एरिया ऑफ द सर्कल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी टू सी। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, लेट्स टेक द p इन int, मतलब आप ये कर सकते हो सिंपल है, ये फॉर्मूला यूज करके, मतलब पी लेके देन रेट लेके देन टाइम लेके, ये आप सिंपली यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। ये सिंपल है बिल्कुल। देन दे फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर। सिंपली यू कैन यूज द इक्वल टू 10 and b equal to 20 and c equal to 20।
आप सिंपली यूज कर सकते हो एवीजी और एवरेज। एवीजी, अगर ये भी यूज नहीं हो रहा, देन आफ्टर एवरेज इज ए प्लस बी प्लस सी। मतलब पहले सम कर लेते हैं, सम ए प्लस बी प्लस सी, देन इसका एवरेज। तो ये सम आया है, इसका एवरेज कर देंगे 3 से, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू, और प्रिंट कर देंगे एवरेज। तो हमारा एवरेज आ जाएगा, इसका होगा 6.16, बिकॉज 12 12 40 एंड 50, 50 डिवाइड बाई 3, इट्स 16.666 समथिंग। तो ये एवरेज हो गया। सेल्सियस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इस फॉर्मूले से, मतलब ये भी सिंपल है। और डिस्प्ले द डाटा टाइप्स ऑफ डिफरेंट, आपको डाटा टाइप फाइंड करना है, मतलब कि ए में कौन सा डाटा है, ए में कौन सा डाटा है। तो आप सिंपली यूज कर सकते हो प्रे टाइप। टाइप से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कौन सा डाटा टाइप है। ये है इंटीजर डाटा टाइप्स। अगर यहाँ पर 1.0 होता तो ये कौन सा डाटा टाइप था, ये फ्लोट डाटा टाइप था। अगर यहाँ पे आपके पास होता राज, तो ये आपका कौन सा डाटा टाइप होता, ये होता आपका स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। ये भी हमने पढ़ लिया है। ये कन्वर्जन भी बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड स्ट्रिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग, कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये भी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। और ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व कर सकते हो। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।